Good morning, class 7th, and welcome to your science class. Today, our topic of study is human digestive system, which is given on page number 17. Okay, page number 17 of your book, Living Science. Okay, students, so it is lesson number 2nd. What is this? Lesson number, we are seeing lesson number 2nd. Okay, students, so human digestive system, we had studied in previous period about the digestion, about the nutrition in hydra, in mosquitoes, in flies, in amoeba, means some multicellular and some unicellular organisms nutrition we have seen. Now about human digestive system. So let me tell you what is human digestive system. It is made of many things. What are those? They are firstly mouth. First is mouth, then esophagus, EHAGUS, esophagus, mouth, esophagus. Esophagus is also known as food pipe. Okay. Then stomach, then small intestine, then large intestine, then rectum, then anus. सबसे पहले हम खाना खाते हैं, मुंह में चबाना शुरू होता है, mastication. Food is broken down into smaller pieces. Then food is passes through esophagus, that is our food pipe, and there that goes in stomach. Okay, in stomach, the muscles of stomach squeeze, वो सिकुड़ती है और खाने को मतलब स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं खाने पर, और फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव जूस उस पर सीक्रेट होते हैं. फिर जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, जो अपचित भाग है खाने का, जो पचा हुआ भाग नहीं, मतलब जो पच नहीं सका ऐसा भाग, लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है, जिसे हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट. ये रेक्टम में जमा होकर फिर एनस के थ्रू बॉडी के बाहर एलिमिनेट होता है. ठीक है. सो ये सारा जो सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं. एलिमेंट्री कैनल. Okay, students, so you have to understand again and again that digestive system is only the alimentary canal, and the parts of digestive system or alimentary canals are mouth, esophagus, that means food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Now we will see about the types of teeth, because the food begins to be digested. First, the digestion occurs in the mouth, and we have variety of teeth. I have told you in your previous period also. So we have to see the different kinds of teeth. Then you have to draw them in your copy afterwards. Okay, students. So this is permanent set of teeth. Permanent set of
state of hormones. Okay, now we have to see different size, different kinds of teeth. See, this is like this. It is canine, C-A-N-I-N-E, C-A-N-I-N. Then second incisor. This incisor, I-N-S-I-N-C-I-S-O, incisor. Then this is premolar. This is premolar. P-R-E-M-O-L-A-R. And last I draw here. This is molar, premolar, and last is
मोलर। MOLAR. Okay, students. So what we have drawn here, the diagrams of teeth. It is permanent set of teeth in human mouth. After falling of milk teeth, we have this set. हमने पढ़ा था उस दिन की 10 साल की उम्र तक, लगभग 10 साल की उम्र तक हमारे शरीर के दूध के दांत गिर जाते हैं, जो कि 20 होते हैं। They are 10 in each jaws, that is upper jaw and lower jaw. 10 होते हैं, then 10 साल की उम्र तक गिर जाते हैं। उसके बाद उनको रिप्लेस करते हैं this परमानेंट सेट ऑफ टीथ, और इसमें 32 टीथ होते हैं। हमको एक एडल्ट की बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में आपको 32 टीथ मिलेंगे, 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। उसमें भी क्या रहता है कि अलग अलग शेप के टीथ रहते हैं, जैसे कैनाइन है, ये कैनाइन्स है, दीज आर कैनाइन्स, और ये सामने के इंसीजर्स है। ये जो कैनाइन है ये टीयर करने के काम आते हैं, मतलब कुछ फाड़ने के काम आते हैं। इंसीजर्स जो है वो कट करने के काम आते हैं, काटने के काम आते हैं। प्रीमोलर्स जो है वो अपने हमारे सामने जो है, मतलब दाढ़े, अग्र दाढ़ बोलेंगे हम उसको, आगे की दाढ़ें, ठीक है। प्रीमोलर जो है वो आगे की दाढ़, और मोलर जो है वो पीछे की दाढ़। तो दाढ़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट होता है। वहां पर उनका वर्क क्या होता है, खाने को ग्रेड करना, उसे महीन पीसना, बारीक उसमें उसको बहुत बारीक पीसना। ओके स्टूडेंट्स, सो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। आपको एलिमेंट्री कैनल के जितने भी पार्ट्स जो हमने पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ, इसोफेगस मींस फूड पाइप, then stomach, then small intestine, then large intestine, then rectum and anus, ये भी आपको कॉपी में उतारना है। ये डायग्राम्स भी आपको उतारना है एंड उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी अहेड। नाउ हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग इज लाइक दिस, है ना, ऐसे होती है टंग। एक मिनट, नो इट हैज बिकम डिफरेंट, आई विल ड्रॉ इट अगेन। लगभग ऐसी ही होती है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। Okay, like this. It is tongue. पहले साइंटिस्ट क्या बिलीव करते थे स्टूडेंट्स कि टंग में ऐसे अलग अलग जगह पर बर्ड्स होते हैं। कुछ बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स उनको कहते हैं। ओके, पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि टेस्ट बर्ड्स जो है वो टेस्ट बर्ड्स मतलब स्वाद पहचानने की जो बर्ड्स है टंग पर अलग अलग भागों में है। जैसे कि ये जो नीचे है, सबसे नीचे, ये कौन सा टेस्ट पहचानता है, स्वीट, ये स्वीट टेस्ट पहचानता है। देन दिस सॉल्टी, ओके, दिस बिटर, सार, SOUR, sour means खट्टा, and this bitter, BITTER। तो पहले साइंटिस्ट ऐसे बिलीव करते थे कि हमारी टंग में ऐसे टेस्ट बर्ड्स है जिसमें अलग अलग जगह अलग अलग टेस्ट पहचानने के लिए जीभ में वो कैपेसिटी होती है। लेकिन अभी इस बात को बिल्कुल भी मतलब खारिज कर दिया गया है और ये बताया गया है कि हमारी जो टंग है इसमें जितने भी टेस्ट
टेस्ट बर्ड्स है वो हर टेस्ट बर्ड सारे टेस्ट को क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। मतलब सारे टेस्ट बर्ड्स में सारे टेस्ट को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी होती है। यहाँ पर वो स्वीट भी टेस्ट कर सकती है, ये वाले टेस्ट वर्ड सॉल्टी भी टेस्ट कर सकती है, सार भी और बिटर भी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके दो डायग्राम्स बने हुए हैं। इसका भी डायग्राम आपको उतारना है। जो पेज नंबर 18 पर दिया हुआ है एक ऐसा डायग्राम है, उसके बाद एक ऐसा भी डायग्राम है टंग का, और फिर नीचे लिखा हुआ है नाउ इट इज प्रूव्ड दैट ईच टेस्ट बड कैन डिटेक्ट ऑल टेस्ट। Now it is proved that each taste bud can detect all tastes. Okay. ठीक है, तो ये आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने हैं। सो आई विल गिव यू होमवर्क नाउ, यू हैव टू राइट द होमवर्क। इसके अलावा टंग का क्या काम होता है, टंग हमारे खाने को मिक्स करती है, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करती है, और बहुत सारे टेस्ट हमको टंग से ही पता चलते हैं। तो अभी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको होमवर्क लिखना है। Write the homework. First, write and learn the names of, writing down the parts, write and learn the names of parts of elementary cannon. Okay, and second homework, draw diagrams of permanent set of teeth of humans that is figure 2.3. Figure 2.3. Okay, and one more figure you have to draw figure 2.4. Yes, you can write like this, draw figure 2.4 also. Okay students, so that's all over for the day. We will meet soon on tomorrow.